start some treatment. So the second part of this introduction of veterinary medicine is the art of making a diagnosis, and this will be the key for the success of your treatment, because once if you make a right diagnosis, then you will write the right prescription. So diagnosis is nothing, that's it, this is just like an art. Okay, just जैसे आप एक चित्र बनाते हैं, कोई चित्र अच्छा बनाता है, कोई अपने ढंग से बनाता है, एक ही चित्र को कोई एक 3 लोगों को हम बनाने दे दें, तो कोई एक ही तरह के फोटो को कोई 3 तरह से बना सकता है. So diagnosis is the art of determination and ecogeneity of nature of the disease, so that the rational treatment is rendered. Means the main theme of this diagnosis is rational treatment. I will come in the next slide. What is treatment and what is rational treatment? But the most important thing is the diagnosis. So diagnosis एक तरह का एक कला है जो वेरिएबल होगा, थोड़ा थोड़ा वेरिएबल होगा सब पे ऊपर. Suppose, just I am giving an example. Yeah, if a cattle is brought here with a history of swelling in this neck region or in the dewlap region, and 4 person, if I ask the 4 students to make a diagnosis, and I ask to submit a paper. Mute कर लीजिए. Okay, so I was talking, एक ऐसा केस आता है आपके पास और आप 5 स्टूडेंट वहां पे जाते हैं, जिसको मैं एक असाइनमेंट देता हूं कि आप इसको डायग्नोस कीजिए. So just taking example, Neha Rani, what you will diagnose if there is a swelling in this dewlap region? क्या डायग्नोस आप करेंगे? एक लाइन में बताइए. अगर यहाँ पे स्वेलिंग है, बॉटल जॉ, ठीक है, आप यहाँ पे रुकिए. नेक्स्ट, एनी अदर, कोई दूसरा स्टूडेंट को दूसरा डायग्नोसिस कर सकता है क्या? यहाँ पे स्वेलिंग है तो सर पैरासिटिक इन्फेक्शन होगा, हाइपोप्रोटीनेमिया, एचएस, और ये क्या बोलते हैं बॉटल जॉ, एक्टिनोबैसिलोसिस माइकोसिस. ओके, बहुत अच्छा. और कुछ भी आप देख रहे हैं, एक ही साइन, या इसको हम साइन ही कर सकते हैं, इसमें वेरिएशन आ गया. किसी ने बताया कि ये बॉटल जॉ है, सिंपल बॉटल जॉ बता दिया गया. किसी ने बताया इट माइट बी ए केस ऑफ हाइपोप्रोटीनेमिया. किसी ने बता दिया कि ये एक्टिनोमाइकोसिस है. सो यू सी हाउ द डायग्नोसिस चेंज फ्रॉम ए डॉक्टर टू डॉक्टर. बट this is written here, ecogeneity means we have to see although we have not diagnosed it through test, but we are diagnosing it through visualization or by physical examination. So this is the art. आप जैसे जैसे डेवलप करेंगे आपको लग जाएगा. आपने लाइफ में पहला केस देखा है, then you will see the second case, then you will see the third case, then you will able to compare it with the biochemical test. Everyone can be right. If someone told that it is a case of bottle jaw, but if I consider it to be a bottle jaw, then I ask 2 students, what may be the cause of the bottle jaw in case of a cattle? कोई एक बताइए. सर पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है तो हाइपोप्रोटीनेमिया हो जाता है, इसी वजह से स्वेलिंग. Can you tell me the name of parasite? Name of the parasite? सर हिमोंकस में भी होता है सर, बहुत सारा पैरासाइट में होता है. ओके, एनी अदर नेम? इन्होंने हिमोंकस बताया जिसमें बॉटल जॉ होगा. फेसियोला हिपैटिका, वेरी गुड. हिमोंकस. और कोई भी पैरासाइट हो सकता है जिसमें बॉटल जॉ हो सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दैट इज ए नेमाटोडल वर्म. Is a nematodal worm. It's a very important parasite. You might have learned 4 parasites, that is parasitic gastroenteritis that create PGE, in which there are 4 parasites. It may be called as a strongylosis. You may call it as a nematodidus, cuparia. All these names you might have learned.
They also produce similar type because you are talking of the hypoproteinemia. So they really create the hypoproteinemia. So they are the nematodal worms. So on that basis, we can say that it may be a parasitic disease. It may be hypoproteinemia due to other cows, or in parasitic disease also there are other diagnoses like Fasciola hepatica in case of liver disorder, or in case of other parasitic infestation. So any changes revealed through certain changes in the structure of the organ. You see the structure has changed or its function. Sometimes the function is changed, is identified by the nature of the disease, and it helps in making a diagnosis. So there will be a different types of diagnosis. First is tentative. When a case comes to you and you are not very well able to appreciate that disease, not recognized with certainty. आपको अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि suppose a diarrhea का case आ रहा है, अभी how you will diagnose whether this is viral, whether this is parasitic, whether this is bacterial. Initially अगर आप नहीं certainty है आप में, you make a tentative diagnosis that this may be due to that. So this is a tentative diagnosis. Now second is direct diagnosis. When a disease is directly recognized by structure, lesion or any pathognomic lesion, ठीक है ना, जैसे मैंने पिछले बार बात किया कि एकदम सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है कि इसमें यही बीमारी होता है. जैसे अभी किसी ने बताया बॉटल जॉ, वुडन टंग बताएंगे, लंपी जॉ बताएंगे, उसमें आपका डायरेक्ट एविडेंस आ जाएगा कि एक जीव है निकला हुआ, वो जीव एकदम इतना मोटा पाल्पेबल हो गया है, यहाँ पे जबड़ा इतना फूल गया है. सो दिस इज द डायरेक्ट. उसमें बहुत ज्यादा फिर आप डायग्नोसिस कराते रहिए, लेकिन यहाँ पे देखने से ही लग जाएगा कि दिस इज डिजीज बिलोंग्स टू दिस बैक्टीरिया. So this is a direct method. You can do palpation, you can do percussion, you can do auscultation, but it gives a direct diagnosis. यहाँ पे कोई confusion की बात नहीं है. Then after tentative and direct diagnosis, we have to confirm that disease. Okay? यहाँ पे केस आते हैं, आप देखते हैं शुरू में पहला दिन जब आता है तो उसको हम थोड़ी कि अभी रिपोर्ट शाम में आएगा तो शाम तक आपको बैठा के रखेंगे. Initially you have to write something on the prescription that this might be a disease, जैसे hemorrhagic gastroenteritis हो गया, डायरिया हो गया, वॉमिशन हो गया, लिवर डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर कुछ इंडिकेट कर रहा है तो डायरेक्टली ही भी हम लिख सकते हैं. Then we send some samples for confirmation. That gives the actual condition of the disease. By clinical, it may be clinical, it may be clinical pathological, or it may be so many method of diagnosis is there, laboratory method of diagnosis are there. So through different tests, we make a confirmatory diagnosis. Now, sometime snapshot comes from a word where you take a picture. Just खचाक से ऐसा picture आपने एक क्लिक दबा दिया. जब आपके पास कैमरा हुआ करता था, जब आप उसे क्लिक का आवाज आता था, उसी तरह से डायग्नोसिस हम करते हैं. That diagnosis is called snapshot diagnosis. It means the diagnosis is done at a very very sir class bus class लेके आते sir. Snapshot diagnosis, that is called diagnosis at the very approach of the patient. आप देख रहे हैं कि एक एनिमल आपकी तरफ आ रहा है, आप बताता है ना, वो डॉक्टर जानवर को देख करके बता देता है कि इसको ये बीमारी है. ऐसा कोई बात नहीं है, वो इतना एक्सपीरियंस होता है, वो इतना केस देखा हुआ होता है कि वो जस्ट देखते ही बता देगा ये बीमारी है इसको. फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग बात कर रहे थे ब्रिस्केट एडिमा के बारे में, अभी हम ड्यूलेप एडिमा के बारे में बात कर रहे थे, अभी हम बात करेंगे ब्रिस्केट एडिमा के बारे में. यहाँ से यहाँ तक फूला हुआ नजर आएगा. ओके, तो ऐसा केसेस अगर जुगुलर पल्सेशन के साथ आ रहा है, हम डिक्लेयर कर देते हैं इट माइट बी ए केस ऑफ TRP, ट्रॉमेटिक रेटिकुलोपेरिकार्डाइटिस. अभी पिछले बार भी बात किए थे कि मिल्क फीवर. इन द केस ऑफ मिल्क फीवर देयर विल बी एसेपेट कर्वेचर ऑफ द नेक, गर्दन किंकिंग ऑफ नेक. अगर इस तरह से किया हुआ है हम डिक्लेयर कर देते हैं. अगर हिस्ट्री अगर शो कर रहा है कि अभी पार्चुरेशन हुआ है, एसेपेट कर्वेचर है, जानवर बैठा हुआ है, आप वहां पे पहुंचते हैं और आप बता देते हैं कि ये केस ऑफ मिल्क फीवर, स्टार्ट द ट्रीटमेंट. सो दिस इज कॉल्ड स्नैपशॉट डायग्नोसिस. Now another method of diagnosis is symptomatic. Just like a tentative diagnosis, sometimes it is very very difficult to get on the etiology. For example, अगर किसी को epilepsy, मिर्गी का अटैक आ रहा है, तो मिर्गी का अटैक आ रहा है तो मिर्गी के अटैक में आप इतना आसान नहीं है कि आप जाकर के पहुंच जाएंगे what is the cause of this epilepsy. So in that condition, the symptomatic treatment is done
For example, particular prominent sign present, but the site and cause of abnormalities are known. आपको लग रहा है कि this may be a neurological problem, but due to the presence of idiopathic nature, it is you have to make a symptomatic treatment. And the third test is test therapy diagnosis. Means sometime even the test is unable to declare that this is due to this disease. On that condition, the doctor has to wait, उसको wait करना पड़ता है. Wait करने के बाद डॉक्टर सोचता है, एक प्रिस्क्रिप्शन लिखता है आपको और बोलता है टेस्ट भी देख लिया, इसमें भी निगेटिव आया सर, कुछ नहीं आ रहा. ज्यादातर कभी कभी ऐसा फेस करना पड़ता है हम लोग को कि टेस्ट हमने कराया, हम समझ रहे हैं ये बीमारी है, टेस्ट कराया निगेटिव आया, क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया, कुछ उसमें वैसा फाइंडिंग. हेलो, लिंक टूट गया था. आवाज आ रही है? हेलो जी सर, अब आ रही है. Okay. So that type of therapy is called test therapy diagnosis. For example, response of the animal to a particular disease. कभी कभी आप देखते होंगे, आप कभी आप फिजिशियन के पास जाएंगे, आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा और बोलेगा कि 1 सप्ताह के बाद आइए. ठीक है, 1 सप्ताह के बाद आता है ऑनर, या फिर आप जाते हैं, वो आपको बताता है कि सर इतना % सुधार है. दिस इज कॉल्ड टेस्ट थेरेपी डायग्नोसिस. हमने एक ट्रीटमेंट लिखा, मैंने थियोरेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी नॉलेज हमने एक डिजीज को डायग्नोज किया और एक मेडिकेशन लिखा. जहां पे आप सारा चीज फेल हो रहा है, वहां पे एक मेडिकेशन लिखते हैं, फिर उसको बुलाते हैं, हम देखते हैं कि इस थेरेपी से कितना फायदा उसको हुआ है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस ट्रीटमेंट. So that is called a test therapy diagnosis. Sometimes we have to do this type of diagnosis also, and on the basis of test therapy diagnosis we will be able to appreciate the different types of disease. Now the next approach is prognosis, and this is the widely asked question by the owner. कहीं भी, चाहे आप अपने डॉक्टर के पास जाइए या आपके पास केस लेके आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्नोसिस है और इस पे चर्चा करना चाहिए. अदरवाइज आजकल देखते हैं डॉक्टर और क्लाइंट में बहुत ज्यादा झगड़ा. यहाँ भी जहाँ केस ज्यादा होगा वहाँ मोर्टेलिटी आएगी, जहाँ ज्यादा नंबर ऑफ एक केस आएगा कोई बात नहीं है. अगर हम मेडिसिन में यहाँ 70 से 80 केस प्रतिदिन देखते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि सारा टेस्ट जो सारा रिपोर्ट जो आ रहा है सारे केस हम बचा ले जाएं. ठीक है ना. शुरू में हम बहुत इंथुजियास्टिक हो जाते हैं और हम ऑनर को ऐसा भरोसा दे देते हैं, उसको सही बात नहीं बताते हैं. So that is a prognosis. Whether क्या फेट हो सकता है इस बीमारी का, कितना दिन लॉन्गेविटी और जानवर का बचा हुआ है, ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक होगा तो कोई कॉम्प्लिकेशन होगा कि नहीं होगा. So the term refer to the opinion of a veterinarian. आपका ओपिनियन क्या है इस बीमारी पे. हो सकता है आपका ओपिनियन बहुत खराब हो और किसी दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन थोड़ा बेहतर हो कि नहीं कुछ दिन और बचा जाएंगे. So the opinion of the doctor or the veterinarian regarding the duration and outcome of the disease, सबसे ज्यादा सर कल ठीक हो जाएगा ना, अभी ठीक हो जाएगा ना, बच जाएगा ना मेरा डॉग, मेरी गाय बचा लीजिए. These are some of the very specific question they ask, and you have to give some answer in a very diplomatic manner, because anything can happen. If you are able to diagnose a case, if you are able to write a good prescription, if you are able to make a appreciate the sign and the symptom of the disease, then you can make a good prognosis. What is a good prognosis? It may be favorable, it may be doubtful, it may be poor, or it may be grave. Now you have to give some indication to the owner. Otherwise the owner never think, all owner think that if I visited a veterinary college, all cases will be cured. So this is not the truth. You have to tell according to the biochemical test, according to the sign and symptom of the animal, and according to your diagnosis. You have to say, this is curable. ये ठीक हो जाएगा, ठीक होने की संभावना है. Situation is complicated. This is a complicated case. ठीक हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम इसमें रह जाए, that is called a sequelae.
कभी कभी आप बताएंगे कि देखिए बीमारी अभी ठीक हो रहा है, फिर दोबारा होने का भी चांस हो सकता है, दैट इज कॉल्ड रिलैप्स। और कभी कभी आपको सच्चाई बताना पड़ेगा कि नहीं, चांस बहुत कम है। ज्यादातर केस यहाँ पे आते हैं जो कि लास्ट मोमेंट में रिफर्ड केसेस आते हैं। आप कोई टेस्ट बाहर नहीं हुआ होता है, कोई बायोकेमिकल एस्टिमेशन नहीं हुआ होता है, किसी तरह का फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं होता है, आप बायोकेमिकल टेस्ट देखते हैं, आपके पास एक रिपोर्ट आता है, आप देखते हैं कि क्रेटिनिन लेवल 12.5 है, फेवरेबल प्रोग्नोसिस नहीं है, दिस इज अ ग्रेट प्रोग्नोसिस। ओके, सो यू हैव टू टेल द ट्रूथ। लोग वहां पे हो सकता है रोने लगे, लेकिन उसको भी बताने का एक ढंग होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं ब्लाइंडली आपको बोल देना है कि नहीं जाइए आपका कुत्ता मर जाएगा, जाइए आपका जानवर मर जाएगा। बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही आप खुद देखेंगे यहाँ पे when you will attend a practical class how we tell even there is a chance of death, we have to console the patient, we have to tell something, just we are trying, हम कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन थोड़ा ठीक नहीं है, रिपोर्ट अच्छा नहीं आया है, फिर भी हम इसको कोशिश कर रहे हैं, 2-3 दिन वेट करिए, हो सकता है ये ठीक हो जाए। सो ऑनर को लगने लगता है कि सिचुएशन ठीक नहीं है, अचानक आप बोलते हैं कि जैसे ही रिपोर्ट, कुछ डॉक्टर ऐसे रिपोर्ट देखते हैं, ऐसे फेंक देते हैं, जाइए आपका जानवर मर जाने वाला है, ऐसा नहीं करना है। सो प्रोग्नोसिस को बहुत ही अच्छे ढंग से डील करना है। दिस इज ऑनलाइन एंड क्लाइंट रिलेशनशिप, ठीक है ना, ऑन क्लाइंट एंड डॉक्टर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेगा। समटाइम इवन द ऑनर appreciate you when his dog or when his cow die, and sometime the owner attack at you, अटैक करते हैं, आप सुने होंगे कितना झगड़ा होता है कभी कभी। इट विल ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ यू टॉक विद ऑनर, हाउ यू मेक ए, कैसे आप उससे बात करते हैं, कैसे आप उसको समझा पाते हैं। द प्रोग्नोसिस, सो द प्रोग्नोसिस इज विल बी द biggest tools of your diagnosis and your treatment. Whether the animal dies, whether the animal survive, it all depends upon your voice and all depends how you deal with the patient. So coming last, treatment, because we are dealing with the treatment and you have to see the treatment here, and there are various methods of treatment. The most important method of treatment is the rational method of treatment, जहाँ पे आप on the basis of pathophysiology, आप जो आपने पढ़ाई किया है उसके बेसिस पे, और फार्माकोलॉजी का जो नॉलेज है, फार्माकोथेरापेटिक्स नॉलेज के बेसिस पे जो आप करते हैं ट्रीटमेंट, दैट इज कॉल्ड ए रैशनल ट्रीटमेंट। और रैशनल ट्रीटमेंट ही होना चाहिए ज्यादातर केसेस में। बट समटाइम we have to do empirical means treatment based on experience, means trial and error. Sometime जो कभी कभी आप बोलते हैं कि वो गांव का भी एक वो भी ठीक कर देता है कभी कभी केस को। तो वो क्या करता है, किसी डॉक्टर के साथ लगा होगा, उसने देखा है कि इतना तरह का, कभी ये लगाया वो लगाया, इससे ठीक होने लगा, ट्रायल एंड एरर किया और एक एस्टैब्लिश कर लिया फैक्ट कि इससे ये बीमारी ठीक होता है। दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। देन स्पेसिफिक, आपको पता है, जैसे आपने लगा लिया कि स्नैपशॉट डायग्नोसिस से लगा लिया कि ये मिल्क फीवर है, आपको ज्यादा देखना नहीं है, सीधे सीधे कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन लगाना है और ट्रीटमेंट हो जाएगा। ज्यादातर केसेस में इनिशियल स्टेज में पहला दिन जब आपके पास आता है, कोई आपके पास रिपोर्ट नहीं है, कुछ आपने सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन किया है, नेजल सिक्रेशन है या यूरिनेशन का प्रॉब्लम है, फीवर है, जब तक रिपोर्ट नहीं आता है, यू गो फॉर सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। And sometimes we have to do the palliative. Palliative means when बहुत सारे ऐसे डिजीज आएंगे जिसका क्योर नहीं है, you have just to prolong the life span of the animal. आपको जस्ट बढ़ाना है, आपको पता है कि एनिमल ये बीमारी से ठीक नहीं होगा, ऑनर को प्रोग्नोसिस बता देना है, बट यू हैव टू राइट ए पैलिएटिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को एपिलेप्सी का बीमारी है, उसको हम क्योर नहीं कर सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं, उसके फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं। कोई डायबिटीज से सफर करते रहता है, उसको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट दिया जाता है। सो दिस आर द मेथड ऑफ पैलिएटिव ट्रीटमेंट। किसी को विटामिन डी की कमी होती है, उसको बोलते हैं कि आप सनलाइट लीजिए, दैट इज कॉल्ड ए हेलियो ट्रीटमेंट। इंसुलिन का थेरेपी कोई लेता है, दैट इज आल्सो ए पैलिएटिव ट्रीटमेंट। सो दिस इज द मेथड ऑफ ए ट्रीटमेंट, दैट इज द, बट योर बेसिक रूल शुड बी रैशनल। Empirical can be done on the basis, जब आपका बहुत 10 साल 15 साल 20 साल तक आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका empirical मेथड भी डेवलप कर जाएगा। स्पेसिफिक बहुत कम ही मिलते हैं, सिम्टोमेटिक आपको मिलता रहेगा, और सम टाइम इन सर्टेन डिजीजेस
you have to start a palliative method of treatment. So thank you for this, and